Hello students, I am back with your computer class. Today we will do reading part of chapter Internet. So before starting the chapter, I just want to share something with you, or I want to tell something. I hope you all are safe at home. आप सब अपने घर पे अच्छे से हैं, सेफ है. बी एट होम बेटा, कहीं बाहर नहीं जाना एंड सेफ रहना है. हेल्दी फूड खाना है, ईट हेल्दी फूड, फ्रूट्स, and as we are these videos are being sent to you for exercise. Do exercise daily, and this is the time period given to you to be with your family members, to be with your brothers and sisters. So this is the time period you can enjoy with them, you can make memories with them. So enjoy with them, and with that study, because you don't have to work, pile off your work. अपने work को pending नहीं रखना है. Complete that work on time. And I know you are very good students. You will listen to teachers. You will listen to your parents as well. And now we will be on your screen reading chapter. So students, this is chapter number 9, the Internet web browser. So students, we have read about, means we have learned about the internet, network, uses of internet, advantages and disadvantages of internet. So today we will do the reading part, and before starting it, I just want to confirm you one thing. I just want to tell you one thing. In my previous class, by mistake, I have used the word read. So स्टूडेंट्स, आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियर, वी हैव नॉट रेड दैट चैप्टर बिफोर. हमने इस चैप्टर की रीडिंग अभी तक की नहीं है, आज हम शुरू करेंगे. बट इन प्रीवियस क्लास, लास्ट क्लास, बाय मिस्टेक आई यूज द वर्ड रेड, सो इग्नोर इट एंड रियली सॉरी फॉर दैट. नाउ वी विल डू द रीडिंग पार्ट. सो स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, द चैप्टर नेम इज द इंटरनेट वेब ब्राउजर. सो लर्निंग इन दिस चैप्टर, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. हम इस चैप्टर में क्या क्या लर्न करने वाले हैं. व्हाट इज नेटवर्क? व्हाट इज नेटवर्क आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, बट स्टिल वी विल रीड इट. व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या होता है? यूजेस ऑफ इंटरनेट, advantages and disadvantages of internet. It is not there in this chapter, but still I have told you because it is very important. You should know about कि जो चीज़ आप लर्न कर रहे हो उसको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं and उसके फ़ायदे क्या हैं and नुकसान क्या हैं. After that, history of internet, uncommonly used terms. So we are going to start from here. What is network? Let me scroll down. Yes. So children, suppose your family plans to visit your grandparents' house for vacations to spend good time with them. Your father plans to go via car since the place is far off and he wants to travel by road. So he will take help of Google Map as it displays the areas connected through network of roads. So students, these lines are saying कि इन योर वेकेशंस आपने प्लान किया, यू प्लान टू गो टू योर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस वेकेशंस में, स्पेंड टाइम विद देम. सो आपके पापा ने चूज़ किया कि हम बाय कार जाएंगे, बट दैट प्लेस इज़ वेरी फार, मीन्स वो बहुत दूर है. एंड एज ही वॉन्ट्स टू गो बाय रोड, सो वट ही डिड इज़ he will take help of Google Map as it displays the areas connected through network of roads. Because that place is very far and in between there is a network of road. बहुत सारी network of roads हैं, कोई road कहीं जा रही है, कोई road कहीं जा रही है. So he take the help of Google Map because क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि वो किसी गलत road के थ्रू किसी गलत जगह पे पहुंच जाए. So that is why he took the help of Google Maps, so that he directly go to the right place, by using the right road connecting to that place. For example, related to this I can give you, आप अपने किसी friend के घर जा रहे हैं and he told you the address, like he told you that is my house number is Hudda
and my house is in Hooda and number is 261, for example. So you don't know where is Hooda house number 261. What you can do is from your house you can take the help of Google Map. अपने Google Map की हेल्प से आप उसके ऊपर लोकेशन चूज कर सकते हो, Hooda house number 261. So that Google Map will help you to directly, it will directly take you to that address instead of moving in Hooda and searching for that proper house. means Hooda में इधर उधर घूमना और एक स्पेसिफिक घर को ढूंढना कि ये घर कहाँ पे है. अगर आप गूगल मैप की हेल्प लोगे तो आपको डायरेक्टली कहाँ पहुंचा देगा, उसी घर के पास. So these network help us in traveling from one place to another so that we meet our friends and relatives living at far off places. सो ये नेटवर्क आपकी हेल्प करते हैं ताकि आप जब अपने किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से मिलने जा रहे हो तो यू शुड गो टू राइट प्लेस ऑन अ राइट टाइम. नाउ मूविंग फर्दर, आई एम देयर. Yes, I am there now. Now can you tell me some other way to interact with your friends and relatives rather than meeting them personally? अब they are saying कि आप अपने फ्रेंड से फेस टू फेस मिलने की जगह कोई ऐसा कोई जरिया बता सकते हो, ऐसा कोई रास्ता बता सकते हो जिससे आप अपने फ्रेंड के साथ इंटरेक्शन भी करो, यानी उनसे बातचीत भी करो, बट यू डोंट नीड टू गो देयर पर्सनली, आपको वहाँ जाना ना पड़े. Yes, it is possible via computer or smartphone. Smartphone के थ्रू पॉसिबल है. You can call him, you can video call him as you students, as you use these days WhatsApp पे वीडियो कॉलिंग करते हो आप, so that आप सामने वाले बंदे को देख भी सको और उनसे बात भी कर सको. तो what it makes like you are interacting with that person face to face. Like it is not face to face, but it gives you the feeling that you are meeting with the person face to face. Your computer or smartphone can help you in this task only if it is connected to the respective device at the other end. मतलब ये possible है अगर आपका स्मार्टफोन या कंप्यूटर जो है that is even connected to the internet from other end जिससे आप बात करना चाहते हो. Just as a road of network connects various cities and towns, likewise there exists a network that connects different computers with each other. The network is known as a computer network. जैसे नेटवर्क ऑफ रोड्स हैं वो टाउन्स को, सिटीज़ को एक दूसरे के साथ जोड़ती हैं, तो कंप्यूटर भी ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. कंप्यूटर एक ऐसा नेटवर्क भी है जो कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क. नाउ वी विल रीड अबाउट द टर्म व्हाट इज इंटरनेट. इंटरनेट क्या है? When the computer networks are joined together, they form a bigger network called the internet. जब कंप्यूटर नेटवर्क्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर जाते हैं, when computers are joined together, when large number of computers are joined together, they make a network that is internet. Internet connect million of computer around the world. It has revolutionized the whole world and made computers the most effective communication tools. So इंटरनेट क्या काम करता है? इंटरनेट कनेक्ट्स मिलियन ऑफ कंप्यूटर, मीन्स दुनिया भर में मिलियन ऑफ कंप्यूटर को वो एक दूसरे के साथ जोड़ता है, एंड सो दैट वी कैन शेयर एनीथिंग एट एनी पॉइंट. द इंटरनेट नॉट ओनली कंटेन्स huge variety of information but also provides new way of interacting and connecting with people. इंटरनेट पे हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती है, बल्कि हम कभी भी किसी के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं. दिस ऑल कैन बी डन थ्रू इंटरनेट. नाउ स्टूडेंट्स वी विल स्टडी अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट. इट इज़ देयर एज यू कैन सी इन ब्लू कलर. सो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट क्या है? मीन्स सबसे पहले तो हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री इज़ यू कैन से कि कोई चीज़ कहाँ से शुरू हुई थी. मीन्स आपकी फैमिली में आपके फादर हैं, आपके ग्रैंडफादर हैं, आपके ग्रैंडफादर के भी फादर हैं, तो वो फैमिली आपकी कहाँ से शुरू हुई थी?
दैट स्टार्टेड फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, आपके बुजुर्गों से, मीन्स आप भी नहीं जानते कि वो कौन थे, तो दैट इज बहुत दूर से जो रिश्ते चले आ रहे हैं, दैट इज हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री मीन्स कि कौन सी चीज़ कब कहाँ से पैदा हुई थी, कौन सी चीज़ कब कहाँ से बननी शुरू हुई थी। सो हिस्ट्री में क्या होता है, जब वो चीज़ बननी शुरू हुई थी उससे लेके अब तक उसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स आए हैं और वो कैसे कैसे बनी है, ये सब हिस्ट्री के अंदर इंक्लूड होता है। सो इन 1969 व्हेन द मैन वॉक्ड ऑन द मून, the US Defense Department set an advanced research project agency for further research. They designed a network of 4 computers to exchange and share their data. ये उस टाइम की बात है 1969 की, जब जो आदमी है वो मून के ऊपर गया था। तो US डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक एजेंसी बनाई थी। दे हैव सेट अ agency that is Advanced Research Project Agency ARPA for further research करने के लिए about man walked on the moon. They designed a network of 4 computers to exchange and share their data. So उन्होंने क्या किया, 4 कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क बनाया, 4 कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया so that they can share their data. This network was called ARPANET. इस नेटवर्क को क्या कहा गया, जो 4 कंप्यूटर्स का नेटवर्क था, ARPANET, और फुल फॉर्म इसकी है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, दैट इज ARPANET. A stand for advanced, R stand for research, P stands for project, A stands for agency and NET stands for network, that is ARPANET. तो उस वक्त वो क्या था, शुरुआत में वो सिर्फ 4 कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन थे so that they can share the information. Later many universities were allowed to join this network and share information. This was the beginning of networking of computer which grew bigger day by day and give birth to the internet. और धीरे धीरे क्या हुआ, उनके साथ और कंप्यूटर्स जो एक दूसरे के साथ जुड़ते गए, धीरे धीरे ये एक लार्ज ग्रुप बनता गया एंड दैट इज द बिगनिंग ऑफ नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर. यहाँ से किस चीज़ का जन्म हुआ, नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर, और जो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता क्या बन गया, दैट इज इंटरनेट, सो दैट दे कैन शेयर द इंफॉर्मेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड. The technology which has radically changed our life. Earlier, the internet was used by engineers, scientists, and computer experts for research purpose, but gradually the internet was made accessible. So पहले क्या था, पहले सिर्फ साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, ये लोग अपने जो रिसर्च के लिए इंटरनेट का यूज़ करते थे, बट धीरे धीरे it is used by the common man as well. Was made accessible to private agencies and general public. People started using it for sending messages and file between any two computers. So जब इंटरनेट जब बना था तब उसको सिर्फ साइंटिस्ट लोग और उसको जो रिसर्च जो करते थे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स, वो इसको यूज़ करते थे फॉर देयर रिसर्च वर्क, उनके रिसर्च वर्क के लिए. बट धीरे धीरे इट कम्स इनटू कॉमन मैन्स लाइफ. आजकल हर घर में इंटरनेट है. एवरी सिंगल पर्सन इज़ यूजिंग द इंटरनेट ऑन मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर और लैपटॉप. पीपल स्टार्टेड यूजिंग इट फॉर सेंडिंग मैसेजेस इन फाइल बिटवीन एनी 2 computers. सो दिस इज इंटरनेट. नाउ कॉमनली यूज इंटरनेट टर्म्स. कॉमनली यूज इंटरनेट टर्म्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल www, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब. सो www refers to a network of websites on internet. www क्या है? That is a network of websites. Yesterday I told you कि website क्या होता है. So website is a collection of web pages, जहाँ पे बहुत सारे web pages होते हैं जो different information contain करते हैं.
अब ये है वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है. वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? दैट इज अ नेटवर्क ऑफ वेबसाइट्स. मीन्स वेबसाइट्स का बहुत बड़ा कलेक्शन, एम्पल ऑफ मिलियंस ऑफ वेबसाइट का कलेक्शन, जिसमें इंफॉर्मेशन होती है फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर, एनिमेशन और वीडियो के रूप में. टेक्स्ट के रूप में, पिक्चर्स के रूप में, वीडियोस के रूप में. लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर on that, and this information can be accessed by people all over the world. So this is world wide web. World wide web क्या होता है? That is a collection of websites, network of websites that contain information, जिसके ऊपर ample of websites हैं और जिन पे information है जो हम कभी भी कहीं से भी use कर सकते हैं. After that, web page. A web page is a digital page of website which may contain text, images, videos and audios etc. कल मैंने आपको वेब पेज दिखाया था. वेब पेज क्या होता है? अ सिंगल पेज ऑफ अ वेबसाइट जो हमें इंफॉर्मेशन देता है. कल मैंने आपको DPS सिरसा की वेबसाइट दिखाई थी, तो आई टोल्ड यू कि एक वेब पेज क्या होता है. बहुत सारे वेब पेजेस की कलेक्शन से क्या बनती है? वेबसाइट. और होम पेज क्या होता है? उसी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज है, जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो जो सबसे पहला पेज आता है, दैट इज योर होम पेज. सो द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड द होम पेज. इट कंटेन द मेन इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सेस्ड वेबसाइट अलॉन्ग विद द लिंक्स टू अदर वेब पेजेस ऑफ द वेबसाइट. इसके ऊपर हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है? इसके ऊपर हमें उसी सेम वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस की लिंक मिलता है, सो दैट वी कैन स्क्रॉल थ्रू ऑल द वेब पेजेस. नाउ हियर इट इज URL. यस, URL क्या होता है? URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. कल भी आपको बताया था, जैसे आपके घर का एड्रेस है, जो आपके घर का एड्रेस है वो किसी और के घर का एड्रेस हो सकता है? नहीं, बिकॉज इट इज यूनिक. सो दैट इज एड्रेस ऑफ योर हाउस. ऐसे ही हर वेबसाइट का एक एड्रेस होता है, दैट इज URL ऑफ द वेबसाइट. लाइक dpssirsa.com. so that is the URL of our स्कूल वेबसाइट. वो हमारी स्कूल की वेबसाइट का URL है, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. द URL ऑफ एनी टू विजिट योर फ्रेंड्स प्लेस यू नीड टू नो हिज एड्रेस. अगर आपको अपने फ्रेंड के घर जाना है तो आपको उसके घर का एड्रेस पता होना चाहिए. Similarly, to visit any website, you need to know its address. Each website is identified by its unique address. हर वेबसाइट का एक unique address होता है, that is uniform resource locator. The URL of any website is entered in the address bar of the web browser. After that, internet service provider. Here it is. Yes, here it is, internet service provider. ISP stands for internet service provider. ISP क्या होता है? ISP एक ऐसी कंपनी है जो आपको इंटरनेट का कनेक्शन देती है, बदले में आपसे फी चार्ज करती है. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी दुकान पे कोई चीज़ लेने जाते हो तो आप उनसे चीज़ मांगते हो, बदले में वो आपसे पैसे मांगते हैं. ऐसे ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी जब आपके घर पे इंटरनेट का कनेक्शन लगा के जाते हैं, व्हेन दे कनेक्ट योर लैपटॉप और व्हेन दे आर गिविंग यू कनेक्शन ऑफ इंटरनेट एट योर होम, आपके घर के एड्रेस पे दे आर गिविंग द इंटरनेट, दे चार्ज अ फी. और जो कंपनी आपको वो देती है इंटरनेट का कनेक्शन, वो होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. सो ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. An ISP is a company which provides the internet services to users in exchange for a fee. It provides services for accessing or using the internet. It also provides internet, emails, accounts, software, username and password to the user in order to get connected to the internet. So ये इंटरनेट
हमें प्रोवाइड करती है, और उसके इट प्रोवाइड्स इंटरनेट ईमेल अकाउंट्स, हमें इंटरनेट के कुछ ईमेल अकाउंट्स और उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर, कुछ यूज़र नेम या पासवर्ड भी हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, सो दैट we can connect to the internet. Some of the popular internet service provider are BSNL, Tata, Airtel, Reliance, Idea, etc. and many more. Now we will read net surfing. Here it is, net surfing. Yes. So the act of searching on the World Wide Web by using one link after another without a planned search strategy is called net surfing. Net surfing का मतलब क्या होता है? किसी भी वेबसाइट, किसी भी इंटरनेट के ऊपर एक के बाद एक किसी भी चीज़ को सर्च करते जाना बिना किसी प्लानिंग के, जस्ट टू टाइम पास, दैट इज नेट सर्फिंग. मतलब यू आर नॉट डूइंग अ स्पेसिफिक वर्क, बट आप कोई भी वेबसाइट ऐसे देख रहे हो, फिर आपने किसी और लिंक पे क्लिक कर दिया जस्ट टू टाइम पास, दैट इज नेट सर्फिंग. Like the surfer of the water sport rides the waves towards the shores by going with the flow, similarly the net surfer surfs the ocean of knowledge, the internet, by simply following the links. जैसे कि जब वाटर स्पोर्ट होता है, जो पानी के अंदर जब वो स्विमिंग करते हैं, दे डू द स्विमिंग, दे डू द वाटर राइडिंग, तो दे जस्ट फॉलो द वाटर वेव. वो वाटर वेव को फॉलो करते हुए वाटर के फ्लो के साथ दे जस्ट मूव लाइक. एंड ऐसे ही नेट सर्फर क्या करता है, जस्ट वन लिंक के बाद अनदर लिंक, वो नॉलेज के लिए जस्ट उसको क्लिक करके और टाइम पास करने के लिए जस्ट क्लिकिंग इट एंड गेटिंग द नॉलेज. अ लिंक कैन बी अ हाईलाइटेड टेक्स्ट. लिंक एक टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, एक बटन की फॉर्म में भी हो सकता है, एंड इट कैन बी इवन इन द फॉर्म ऑफ इमेज. When we move the cursor over a link, the cursor changes to hand-shaped pointer. जब हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो कर्सर हमारा हैंड की शेप में हो जाता है. And clicking the link takes us to a web page in the same website or to a different website. तो वो जो लिंक है वो हमें सेम वेब पेज पे भी ले जाता है और उसी वेबसाइट के डिफरेंट वेब पेजेस पे भी ले जाता है, उसी वेब पेज पे भी रखता है, उसी वेब पेज के अंदर कहीं कुछ सेकंड थर्ड लाइन में कोई लिंक है उस पे जाके क्लिक करता है. सो इट डिपेंड अपॉन कि वेयर दैट लिंक गोज टू, वो लिंक कहाँ जाके खुलेगा. सो स्टूडेंट्स, वी विल रीड टिल देयर टुडे and rest of the things we will read in next class. And in next class we will read about search engine and basic requirements for an internet connection. And till now read the chapter which I have given, like I have given you homework of page number 91 and 92 to read. That is your homework. So I have read with you, but still again you read it at your home once again to clear the term. Still you feel any kind of confusion, just let me know, I'll clear your confusion. And study well and obey your parents and be safe at home. Don't move out and obey your parents. And for till now, for next week, now we will meet, means because we are having computer class next week, so we will meet next week. Till then, bye.